Dear students, today we discuss about article, and this topic is for students of class 3 upwards, class 3 to class 8. Article, we have two kinds of article: indefinite article, indefinite article, and definite article. First of all, we must know that where do we use an article. Articles are indefinite A and M, and D is the definite article. There are three articles: A, M, and D. Articles is a very important chapter on us in Islam. First, we must know that where should we use an article. Article is used before singular number of countable noun. Singular number before singular number of countable noun. Just know that what is countable and uncountable. Countable means which we can count. The dog, we can count the number of dogs, and food. So this you cannot count. That is dog, and you write its plural. One thing you must remember, that we will make plural of countable noun. Uncountable noun is generally used in singular number. Uncountable noun we use in singular number, but countable noun is used in singular and plural both. But few uncountable nouns also used in plural number, but their meaning is different. You just see about this point out on article where we used singular number of countable noun. Singular number: Ram is a good boy. Here boy is singular number of countable noun, so we put an article A. Ram is good boy is not a correct sentence. We use an article that is A. That's again you know that when we have a single number of countable noun in a sentence, we use an article before that. First thing is that where should we use an article? We should use an article before singular number of countable noun. Another thing, here should we use A, M, and D. We have three kinds of articles, two kinds of articles: indefinite and definite. A and M are indefinite articles, and D is the definite articles. First of all, you know that we use M before a verb, a countable noun that begins with a vowel. That begins with a vowel. Before a countable noun, singular number of countable noun, we use M when it begins with a vowel. But it begins with consonant, we use A. Simple. Theory is there. When a word starts with a vowel, we use it before M before it. When a word starts with a consonant, we use A before it. Simple things there, but something more you should understand. Why should we use here N? Because here vowel. One day before, I told you about pronunciation, speaking.
sound of words. As orange, how do we speak? Orange. But sometimes you use one. Just watch, here we sound like orange, and here we sound like one. One. That is W, one. When the pronunciation is like a vowel, then we write N. But when the pronunciation is like a consonant, then we use A, that is 1 rupee note. A 1 rupee note. Honest. We speak the word honest. The word letter H is silent. Honest. Hence we use N. We must watch if a word sounds like a vowel. Speaking sound is like a vowel, then we use M. And when its beginning sound is like a consonant, whether we use a vowel or consonant, doesn't matter. If it sounds like a vowel, then we use M. And if it sounds like a consonant, then we use A. Another example, you see Ram is a university student. University. The word begins, the sound begins like Y. University. Y. Your. In Hindi, that is your. And so we use A. A word like that, when it starts with U, but its pronunciation is like U, like that. U. We use A. But if you pronounce like or unidentified, umbrella. This sounds like umbrella and umbrella. Unidentified person and unidentified person. We should watch like that. When its sound is like consonant, then we use A, and it sounds like a vowel, then we use N. यानी ये ध्यान दीजिए आप, जब आप यूज करते हैं किसका, आर्टिकल्स का, आपने जैसे पढ़ा या जाना या समझते हैं कि ए का यूज करते हैं, कोई भी सिंगल नंबर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज करते हैं। उसके बाद ए का यूज कहां करते हैं, यदि कोई वर्ड एक कॉन्सोनेंट से शुरू होता है या कॉन्सोनेंट की तरफ उसका साउंड होता है, ए हॉर्स, ए कैट, ए डॉग, एन ईगल, यानी हम लोग कहते हैं यदि वॉवेल से शुरू होता है तो हम लोग एन लगाते हैं। एन इंजन, an umbrella, an ox, an orange, like that. यदि यह वॉवेल से शुरू होता है, इसका चालू वॉवेल की तरह होता है, शुरू होता है किसी सेंटेंस वर्ड का, हम लोग क्या करते हैं, यदि कॉन्सोनेंट की तरह शुरू होता है हम लोग ए लगाते हैं। ये साधारण सी चीज है, लेकिन एक चीज आप और भी ध्यान दीजिए, यदि वह वॉवेल से शुरू हो रहा है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण यदि कॉन्सोनेंट की तरह है तो हम लोग वहां पर ए लगाते हैं। जैसे ए वन आइड मैन। फिर वैसे ही यदि वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड यदि वॉवेल की तरह होता है तो हम लोग एन लगाते हैं। एन ऑनेस्ट मर्चेंट,
एन ऑनेस्ट मर्चेंट, लाइक इसी तरह से ऑनरेबल, ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल एन ऑनरेबल पर्सन। इस चीज को आपको ध्यान देना है कि यदि कॉन्सोनेंट से शुरू भी हो रहा है लेकिन इसका जो उच्चारण होता है, साउंड होता है, वो वावेल से शुरू होता है। ऑनेस्ट, ऑनरेबल, तो हम लोग वहां क्या करते हैं, एन लगाते हैं। ठीक ऐसे ही यदि वावेल से शुरू हो रहा है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ए करते हैं। ये आप ध्यान रखें। कभी कभी जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं कि हम लोग शॉर्ट में जैसे बोलते हैं एम एल ए, ध्यान दीजिए क्या बोलते हैं, एम एम एल, ऐसे बोले एम एम, ये शुरू हो रहा है किससे, इस एम, कहेंगे एन एन एन, क्या लिखेंगे इसके साथ, एम। और इसी को जो पूरा लिखे जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, मेंबर जब लिखे यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट्स का साउंड है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये ध्यान देना है, ये हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जब हम उच्चारण करते हैं इसका साउंड जब करते हैं और शुरू हो रहा है वो इससे वावेल से एम, वैसे ही जैसे एम पी, क्या बोलते हैं आप, एम पी, एन एम पी, इज एन एम पी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे वो मेंबर होता है, एम से शुरू होता है, तो वहां पर ए लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ए एम से शुरू हो रहा है, मतलब इसका जो हम लोग उच्चारण करते हैं एम, यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। ऐसे कुछ एग्जाम्पल जैसे आप देखिए कि एस डी यू, आप जब बोलते हैं शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं एस एस, ऐसे बोलते हैं एस ना, आप जैसे ए डबल एस एस बोलते हैं तो ऐसे एस डी ओ, यहाँ पर भी हम लोग ए से शुरू हो रहा है, साउंड हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो वैसे जैसे हाई स्कूल कहते हैं कि हाई एच ई स्कूल, एच ई, अब इसको शॉर्ट में लिखेंगे एच, प्रोनाउंसिएशन कैसे हो गया, एच ए से शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे एन एच ई स्कूल। आप एक बार ये ध्यान दीजिए, यदि आप के पास कोई काउंटेबल नाउन है, सिंगल फॉर्म है, यदि वह वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन उसका साउंड यानी बिगिनिंग साउंड वावेल हो, हम लोग क्या लगाते हैं, वहां पर एन लगाते हैं। और कोई वावेल से भी शुरू हो रहा है लेकिन उसका बिगिनिंग साउंड यानी उसका उच्चारण मेरा कैसे कॉन्सोनेंट की तरह है, हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ये प्राय ओ या यू के साथ होता है, यूनियन या ओ का उच्चारण से वन के ओ के तरह हो, इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो वी यूज ए एंड एन। वन थिंग मोर, कभी कभी क्या करते हैं, जैसे आपको पता है कि हमने काउंटेबल नाउन के सिंगल फॉर्म के साथ ही आर्टिकल लगाते हैं। आप जानते हैं प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन नहीं, लेकिन कभी कभी प्रॉपर नाउन को यदि कॉमन हम लोग आर्टिकल का यूज करके क्या होता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं। जैसे रमेश इज ए द सचिन तेंदुलकर, यानी ये सचिन तेंदुलकर। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर का मतलब क्या होता है, लाइक ए सचिन तेंदुलकर नहीं, ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम लोग वहां पर क्या लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं। जैसे एक वर्ड सेंटेंस है, वी नीड ए गांधी, वी नीड ए गांधी टू टैकल द सिचुएशन, यानी वी नीड ए पर्सन लाइक गांधी। इस तरह के सेंटेंसेस हो, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तो आप देखिए दी का मतलब होता है डेफिनेट आर्टिकल। दी का यूज एक परफेक्ट पर्टिकुलर जगह पर हम लोग लगाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि बुक्स के नाम के साथ हम लोग दी लगाते हैं, धर्म ग्रंथ के नाम बाइबल, न्यूज़पेपर के नाम के साथ हम लोग दी लगाते हैं, द इंडियन नेशन।
माउंटेन रेंजेस के साथ लोग भी लगाते हैं, हिमालयास, द आल्प्स, द राजमहल हिल्स। तो बी का यूज हम लोग करते हैं प्रॉपर है, यानी हम लोग जैसे प्रॉपर नाउन भी है, लेकिन बुक्स का नाम है, ओलंपिक्स का नाम है, जर्नल का नाम है, या न्यूज़पेपर का नाम है, माउंटेन रेंजेस का नाम है, तो उसके साथ हम लोग डी का यूज करते हैं। या नदी का नाम है, या समुद्र का नाम है, या फिर जैसे हेवनली बॉडीज है उसके साथ भी हम लोग डी लगाते हैं, द सन, द स्टार्स, इस तरह से लोग डी का यूज करते हैं कुछ ऐसे। और कभी कभी क्या होता है कि कॉमन नाउन के साथ भी हम लोग डी लगाते हैं, जैसे द गर्ल शीटिंग on the last bench, is my sister। अब यहाँ पर आप क्या है, ये द गर्ल परफेक्ट पार्टिकुलर गर्ल के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए लोग क्या यूज कर रहे हैं, दी यूज कर रहे हैं। और उसका दी लगता है, जैसे लास्ट है, फर्स्ट है, इसके साथ दी लगता है, या सुपरलेटिव डिग्री के साथ दी लगता है। द बेस्ट इज द बेस्ट स्टूडेंट, he is the best student, ये सब है जो कि हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स डी का यूज करते हैं। जस्ट अगेन यू शुड नो, हमें ये जानना चाहिए, हम लोग जब सिंगल नंबर है काउंटेबल नाउन का तो उसके साथ हम लोग आर्टिकल लगाते हैं। जब वो कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड शुरू होता है उसके पहले ये लगाते हैं, यदि भावल से शुरू होता है तो हम लोग एम लगाते हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट से शुरू होने के बावजूद भी यदि उसका प्रोनाउंसिएशन साउंड वावेल के जैसा हो तो हम लोग एम लगाते हैं, और वावेल से शुरू होने के बाद भी यदि उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की तरह हो तो लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। अब आर्टिकल्स डी का यूज बट फैक्ट यहाँ पर जैसे कॉमन नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल्स लगाते हैं, लेकिन यदि किसी खास के बारे में बताया जाता है उसको हम लोग डी का यूज करते हैं। जैसे ताजमहल, उसका बुक्स के नाम के साथ, हिमालयन माउंटेन रेंजेस के नाम के साथ, इन सारे चीजों के साथ हम लोग डी का यूज करते हैं। जस्ट वी प्रैक्टिस। थैंक यू। अभी